Hello and welcome everyone in our new class of liquid state, and this will be the last class of our liquid state. So in this class we are going to learn last property of liquid states, that is nothing but Paracore property. So what is mean by Paracore property, that and what is the relation between Paracore and surface tension? Then after, how can we use Paracore property to determine the structures of organic molecules, that we will learn, and also inorganic molecules, some inorganic molecules that we will learn in today's class. And this is quite interesting one. Just concentrate about the terms which I'm going to tell you firstly, because this point you didn't learn before today, and that is why you should concentrate firstly what is mean by Paracore value. I mean to say, what is the definition of Paracore value. Then after, what are the what is the equation which is used for the Paracore value, and that equations we do not have to derive like the equations which we derived for surface tension and viscosity in their classes. But here Paracore equations they have given to us directly by the two scientists. Who that scientists are, that we will discuss after some time, and after this we will learn about simply uses of this Paracore value in determining the structures. But before all this, let me just share you one slide so that you can understood with the Paracore what is mean by Paracore. Then after definition, then after formulas for Paracore value, then after the relationship between Paracore and the surface tension, and then after uses in determining its structure. So let me share this slide. Till then you wait. Yes, it is right in front of you. I think slide is pretty clear to everyone. ये थोड़ा सा ऊपर का जो पार्ट है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है ये पार्ट, बट मैं आप लोगों को वो पार्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी. उसमें ज्यादा कुछ नहीं है डिफिकल्टी. ओके, आफ्टर क्लास आई विल शेयर यू. ओके, सो सी व्हाट इज मीन बाय पैराकोर, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न. देखिए, ये जो कुछ भी पैराकोर वैल्यू है, दिस पैराकोर इज डिफाइंड और इज डिनोटेड बाय द नोटेशन p, इज गिवन बाय द नोटेशन p, एंड उसको हम देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे p स्क्वायर. अच्छे से ड्रॉ करती हूँ थोड़ा सा. इट इज गिवन बाय, लेट मी टेक पेन. it is given in the it is given in the square bracket, and that is nothing but the Paracore value. So whatever this Paracore value is there, this Paracore value tells you information regarding simply the molar volume of a liquid. It gives us information regarding molar volume of a liquid at a temperature at which surface tension is unity. What is mean by this term which I told you? पैराकोर का मतलब क्या है कि the molar volume of a liquid, the molar volume of a liquid at a temperature. पैराकोर का मतलब या फिर पैराकोर को डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं, फिर से एक बार बोलती हूं मैं. क्या होता है पैराकोर वैल्यू? द मोलार वॉल्यूम. क्या, कौन सा वॉल्यूम? द मोलार वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट अ टेम्परेचर at which surface tension is unity. Surface tension is unity. मतलब ही क्या, पैराकोर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम, जैसे कि या फिर जहां पर कि दी मोलार मोलार वैल्यू, आपके लिक्विड का मोलार वैल्यू एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, ऐसे टेम्परेचर को यूनिटी होता है, उसे हम, जहां पर यूनिटी होता है उसे हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं पैराकोर. सो वट एवर दिस पैराकोर वैल्यू इज दियर, दिस पैराकोर वैल्यू is given by the two scientists. And firstly, the Paracore value
is given by, firstly, the paracore value. Wait. Eraser select हो चुका. So, firstly, paracore value is given by the scientist, which is whose name is MacLeod. What is his name? MacLeod. In the year 1923, he studied large number of liquids on the property or on the basis of formula gamma raised to 1 by 4 upon d minus d is equals to c. Now you may ask me, ma'am, what are these quantities or what are these things, or are they important for our exam purposes? So याद रखिए ये सिर्फ फॉर्मूले, इतनी भी कुछ जरूरत नहीं है इनकी, जस्ट तो ये जो कुछ भी गामा रेज टू 1/4 डी माइनस डी इज इक्वल टू सी है. गामा मतलब क्या? सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन जो टेम्परेचर को मोलार वॉल्यूम एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर कि मोलार वॉल्यूम सरफेस टेंशन के यूनिट के इक्वल होता है, ऐसे इसी को हम बोलते हैं पैराकोर. तो अब यहाँ पर गामा इज नथिंग बट सरफेस टेंशन, कैपिटल डी इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, स्मॉल डी इज डेंसिटी ऑफ वेपर एट द सेम टेम्परेचर, and C is a constant. So after this, in the year 1923, मतलब एक ईयर के बाद ही सज्जन ने modified this theory, and he put forth in front of us this formula into this formula, and that formula is nothing but, and क्या किया इस फॉर्मूले में चंद सज्जन ने? तो he just multiplied both the sides of equation इस इक्वेशन को हम 1 कह रहे थे, तो इस इक्वेशन को उसने मल्टीप्लाई किया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ लिक्विड को. सो ये जो कुछ भी मॉलिक्यूलर वेट है उससे मल्टीप्लाई किया. तो वॉट एवर दिस योर सज्जन पुट फोर्थ इन फ्रंट ऑफ यू द फॉर्मूला, इट बिकेम m इंटू गामा रेज टू 1/4. ये थोड़ा सा जूम कर दी हूँ तो आप लोगों को दिख जाएगा. व्हाट इज सज्जन फॉर्मूला? m इंटू गामा रेज 1/4. थोड़ा सा इरेज भी कर देती हूँ सो दैट यू शुड नॉट कंफ्यूज. हाँ, अब आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा फॉर्मूला. व्हाट ही पुट फोर्थ, m इंटू, ही जस्ट मल्टीप्लाइड ना मॉलिक्यूलर जो कुछ भी वेट है उससे. तो m इंटू गामा रेज टू 1/4 अपॉन d माइनस d इज इक्वल टू mc, and that is equals to concentration of P. And now the quantity, ये जो कुछ भी quantity है इन ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में ये P मतलब ही हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था. and what is that? P is concentration of P, that is equals to स्क्वायर ब्रैकेट में P value indicates you paracore for a one constant value, that is nothing but a paracore. So now अब जब आप ये D, कैपिटल D और स्मॉल d कंसीडर करोगे तब वो बहुत ही कम है. एंड ये जो कुछ भी इक्वेशन होगा तो ये वैल्यूज अगर से कम होंगी तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर जो कैपिटल डी है इस कैपिटल डी के कंपैरिजन में ये स्मॉल डी बहुत छोटा है, निग्लिजिबल है, इसलिए वो स्मॉल डी हम क्या कर सकते हैं? निग्लिजिबल है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं. एंड देन आफ्टर what can we do? We can do just a think. And what is that thing? The equation will become m into gamma raised to 4 d, that is equals to P. Now you may ask me, ma'am, what is this or where it goes? It is m into c is nothing but the constant value, that is paracore, उसी को हम बोलते हैं. तो अब हमारे पास में एक वैल्यू है m इंटू गामा रेज टू 1/4 by d, that is equals to P, that is equals to क्या बेटा? concentration of P, and m by d is nothing but the volume. मतलब किसका वॉल्यूम होगा वो? ऑब्वियसली कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? लिक्विड स्टेट, तो वो किसका वॉल्यूम होगा? लिक्विड स्टेट का वॉल्यूम. एंड नाउ सो v m by d मतलब ही हमने बोला है v, तो vm into gamma raised to 1/4, Vm into gamma raised to 1/4, that is surface tension, molar volume, volume of your liquid, and that is equals to paracore. So इसी से हम molar volume निकाल सकते हैं. इसी से हम क्या निकाल सकते हैं? molar volume आपके liquid का. And now this can explain you if
अब यहाँ पर अगर से हमारी ये सरफेस टेंशन की वैल्यू 1 हो जाती है तो इक्वेशन कैसे होगा? इक्वेशन कैन बी बिकेम लाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी, मतलब देखो ना यहाँ पर देखो अच्छे से, ये गामा रेज टू 1/4 है ना, तो ये गामा रेज टू 1/4 की वैल्यू विल बिकेम सिंपली 1। मतलब ये वैल्यू अगर से 1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा? Vm इंटू 1 विल बिकम Vm दैट इज इक्वल टू पी था, तो उसी को थोड़ा रीराइट किया हमने, अच्छा दिखे इसलिए। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी, सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट में पी मतलब पैराकोर, एंड दैट इज इक्वल्स टू Vm, मतलब ही अब इस पर से बताना था हमें पैराकोर की डेफिनेशन। तो क्या होती है पैराकोर की डेफिनेशन? अभी अभी जैसे मैंने बोला था, जहां पर सरफेस टेंशन यूनिटी होता है वहां पर उस टेम्परेचर को, उसका जो कुछ भी मोलार वॉल्यूम होता है उसी को हम बोलते हैं पैराकोर। अब आप लोग सब लोग अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे कौन सी वैल्यू से? पैराकोर वैल्यू से। नाउ आफ्टर दिस, अब ये पैराकोर वैल्यू डिटरमाइन करने स्ट्रक्चर, ये पैराकोर वैल्यू के यूजेस क्या होते हैं? ये पैराकोर वैल्यू के यूजेस होते हैं कि आप कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स निकालते हो, तो उसके लिए आप ये जो कुछ भी इंडिविजुअल जो कंपाउंड्स होते हैं, मतलब एक एक कंपाउंड के आप इजीली क्या कर सकते हो? पैराकोर वैल्यूज डिटरमाइन कर सकते हो। एंड ये जो कुछ भी पैराकोर वैल्यूज है, ये पैराकोर वैल्यूज आप वेट, हम ये जो कुछ भी पैराकोर वैल्यूज है, इस पैराकोर वैल्यूज को हम यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स डिटरमाइन के लिए। और तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास में सज्जन एंड द वोगेल के कुछ डेटाज है, वो डेटा मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। उससे पहले आप वेट कीजिए क्योंकि मुझे शेयर करनी होगी बस ये स्लाइड। So whatever the structures are there and the table, firstly the table, what this table tells us? This table tells us info regarding atomic and the structural paracore determination value. What does it mean? इट मीन्स ये जो कुछ भी आपके एटम्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, इन वैल्यूज के लिए ये जो कुछ भी आपके पैराकोर वैल्यूज है, पैराकोर वैल्यूज गिवन बाय द सज्जन एंड गिवन बाय द वोगेल, गिवन बाय द सज्जन एंड द वोगेल। सो ये जो कुछ भी वैल्यूज है आपके सज्जन एंड वोगेल के, ये वैल्यूज है, जैसे कि हम एक एक वैल्यूज ये ले लेंगे बाद में। एंड यहाँ पर एक बात पहले ही समझ लो, बुक में क्या हो गया है कि ये बॉन्ड एंड रिंग का ये जो मतलब ये हॉरिजॉन्टल, ये जो वर्टिकल लाइन जो दिख रही है आपको, ये वर्टिकल लाइन के इधर जो गया है पार्ट, वो पार्ट इधर है, और ये है आपके पैराकोर वैल्यूज। ओके, तो अब देखो ये जो कुछ भी आपकी वैल्यू है, ये जो पैराकोर के लिए ये जो कि कुछ भी बॉन्ड एंड रिंग है, ये है, एंड पैराकोर यहाँ पर हो। ओके, तो दी यूजेस ऑफ ये पैराकोर वैल्यू किस लिए यूज होते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स डिटरमाइन करने के लिए होते हैं, तो उसमें से हम एक स्ट्रक्चर निकालते हैं और उसके बाद के कुछ स्ट्रक्चर्स आप निकाल करके ट्राई करो। ओके, सॉरी। तो बेंजीन का जो कुछ भी स्ट्रक्चर था केकुले ने हमें दिए वाला, तो वो जो कुछ भी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमारे सामने लिखा है हमने अभी अभी, तो वो क्या है यहाँ पर है, वो स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द केकुलेचर। अब इसमें से आप लोगों के पास में कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, सिंगल बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड कितने, ये सब कुछ आपको गिनना होगा, आई मीन टू से काउंट करना होगा। देन आफ्टर, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आर देयर? 1 2, let me just take a pen and tell you, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब 6 कार्बन के साथ में 6 हाइड्रोजन्स भी है, तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन्स। देन आफ्टर यहाँ पर डबल बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं? 1 2 3, तो 3 डबल बॉन्ड्स। एंड 6 मेंबर्ड रिंग कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? 1 ओनली। सो अब ये सब कुछ देखने के लिए, आई मीन टू से, ये सारे वैल्यूज को अब हम पुटअप करेंगे, आई मीन समेशन करेंगे इनकी वैल्यूज पुट करके। तो कार्बन की वैल्यू कितनी है? वोगल
ने दिए वाले सारे वैल्यूज कंसीडर करने हैं हमें, क्योंकि उसने बाद में ये वैल्यूज और अच्छे से दिए थे। तो ये जो कुछ भी वोगेल की वैल्यू थी कार्बन के लिए इज 8.6, इज इट दियर? यस, इट इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस। तो 6 कार्बन इन 6 into 8.6 it became 51.6। देन आफ्टर 6 हाइड्रोजन के लिए, एक हाइड्रोजन के लिए 15.7, तो 6 के लिए कितनी? 15.7 multiplied by 6, that is equals to 94.2. Then after 3 triple bonds are there, 3 into 19.9, 3 into 19 point, sorry, कहाँ गया ये? यहाँ डबल बॉन्ड के लिए कितनी है? 19.9, तो उसको मल्टीप्लाई करो, मिलेगी वैल्यू आपको क्या मल्टीप्लिकेशन के बाद? 59.7। एंड 6 मेंबर्ड रिंग के लिए, एंड फॉर 6 मेंबर्ड रिंग 1 into 1.4, 6 मेंबर्ड रिंग के लिए कितनी मिल गई आपको वो वैल्यू? 1.4। सो ये वैल्यूज आपने मल्टीप्लाई किए, बाद समेशन करोगे तो पैराकोर ऑफ बेंजीन कितना आएगा? 206.9। कितना आएगा? 206 सॉरी 206.9 या फिर 206.9। तो अब ये जो कुछ भी वैल्यूज है, ये वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ पैराकोर इज कितनी आई हमारी? तो 206 पॉइंट, ये कैलकुलेटेड कितनी? 206.9 इतनी आई, 206.9 इतनी आई, और एक्सपेरिमेंटल कितनी आती है? 206.2। तो अब ये जो कुछ भी वैल्यूज है, ये मतलब ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, 206.9 एंड 206.2। ये जो कुछ भी वैल्यूज है, ये वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं? ये जो कुछ भी स्ट्रक्चर है हमारे पैराकोर वैल्यू की हेल्प से और सरफेस टेंशन की हेल्प से, ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इज the structure can be the same. Then after we can calculate for quinone, then इस quinone के दो स्ट्रक्चर से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, तो वैल्यू तो इन स्ट्रक्चर पर से हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। एंड ये जो कुछ भी वैल्यूज होंगे दे कम आउट टू बी 219 and 236. So from these values, and also there is one example in notes which I'm going to share with you, which you are going to try for a very sure, and it is here. So अभी ये जो कुछ भी एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल पैराकोर वैल्यूज होते हैं ना, तो ये जो एक्सपेरिमेंटल पैराकोर वैल्यूज होते हैं, तो एक मिनट है, अभी कुछ देर पहले हमने स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी लिया था। देखो क्या क्या लिया? स्ट्रक्चर ए एंड स्ट्रक्चर बी लिया था। तो स्ट्रक्चर ए के लिए एंड स्ट्रक्चर बी के लिए जो वैल्यूज थे ना, उनमें से अब आप लोगों को मैंने अभी भी आप लोगों को बोला था कि स्ट्रक्चर ए और बी के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट लिया था। देखो इससे पहले वाले, तो अब एक वैल्यू की जो कुछ भी एक्सपेरिमेंटल एंड कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम थे, इसलिए जो कि 236.1 थी, कितनी थी? 236.1 फॉर ए स्ट्रक्चर, एंड बी स्ट्रक्चर के लिए वो कितनी थी? 219, दैट इज 219, विच इज नॉट इक्वल, with the experimental value. That is why जो कुछ भी आपके क्यूनोलिन का जो कुछ भी आपके क्यूनोन का स्ट्रक्चर, नॉट द क्यूनोलिन, इट इज क्यूनोन। क्यूनोन मतलब ओ एन ई मतलब दो कीटोन होते हैं, वहां पर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा। ओके, सो आफ्टर दैट फिर क्यूनोन का कौन सा स्ट्रक्चर होगा? फर्स्ट वन। मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला था, मैं एग्जाम्पल एक ही बोलूंगी, बट मैंने दोनों एग्जाम्पल्स बोली आपको, और थर्ड एग्जाम्पल भी बोल देती हूँ, कुछ नहीं 2 मिनट लगेंगे मुझे। तो अब देखो ये जो कुछ भी आपकी नाइट्रो सज्जन ने ये जो कुछ भी नाइट्रो ग्रुप के कैलकुलेशंस किए थे, उसमें से पहला स्ट्रक्चर उसने ये दिया था, दूसरा ये दिया था, और तीसरा ये दिया था। अब इसमें से क्या होता है पता है आपको? ए स्ट्रक्चर का वैल्यूज मतलब आप इजीली निकाल सकते हो। अब नाइट्रोजन कितने, नाइट्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कितने हैं, उसमें से वो निकाल करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो टोटल कितना आया? पहले स्ट्रक्चर के लिए 69.5, दूसरे के लिए 98 पॉइंट समथिंग, एंड तीसरे के लिए 74.1 आया। तो अब इस पर से आप लोगों को एक बात पता होनी जरूरी है कि ये जो कुछ भी अब वैल्यू है ना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो कुछ भी इस पैराकोर की आती है वो 73 आती है। अब मुझे बोलो पहले का 73 है, दूसरे का है, या तीसरे का है? 73 तो किसी का भी नहीं है, बट उसके ऑलमोस्ट इक्वल किसका है? थर्ड स्ट्रक्चर का, इस स्ट्रक्चर का आई मीन टू से, एंड इसकी वैल्यू कितनी है? 74.1।
वन इतनी है, मतलब कि जो कि हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं 98.9 से और 69.5 से काफी नजदीक है वो पॉइंट। इसलिए थर्ड स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अबाउट एयर नाइट्रो, is about nitro. I think with this you are clear with paracore, what is the relation between paracore and surface tension, and at unity of surface tension जो कुछ भी मोलर वॉल्यूम होता है आपके एक हाथ टेम्परेचर पे, वो उसी को हम बोलते हैं paracore value. This is all about paracore, relationship between surface tension and the paracore, and lastly uses of paracore, या फिर आप paracore value को क्यों पढ़ना चाहते हो, क्योंकि से हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन इजीली कर सकते हैं। एंड लाइकवाइज दिस हमारा लिक्विड स्टेट जो भी टॉपिक है यहाँ पर फिनिश हो जाता है, यहाँ पर कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर से आपको यहाँ पर कुछ भी डाउट है तो वीडियो को फिर से देखिए और आपके डाउट्स से आपको और भी डाउट